India, good evening. Thanks for joining us on the News Hour. As we speak, Prime Minister Modi is in his Karm Bhumi, Kashi. This is his first visit to the Lok Sabha constituency after being named BJP's candidate from Varanasi. Prime Minister's visit to Kashi comes a day after Congress declared its first list of 39 Lok Sabha candidates, with none being from Uttar Pradesh. In fact, PM Modi is accompanied by Chief Minister Yogi Adityanath. They visited the Kashi Vishwanath temple a short while back. Times Now is live on the ground tracking PM's visit. Just take a look at these pictures. On the left, Prime Minister Modi with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inside the Kashi Vishwanath temple complex, and on the other, shots of Rahul Gandhi during his Bharat Jodo Nyaya Yatra. But the question that the BJP is asking of the Congress is, why hasn't Rahul taken up the challenge in Uttar Pradesh? The focus of the list clearly remained on southern states, from where 28 names of 70% of the candidates have been announced. 16 candidates have been announced for Kerala, and one of the candidates is Rahul Gandhi from Wayanad, something that has irked the left, that has declared a candidate already. Congress is banking on the Gandhi sign to not only repeat the 2019 performance from Kerala, where it won 19 out of the 20 seats, but even better. There is an anti-incumbency against the central government as well as the state government among the people of Kerala. So we fielded better candidates. Last time we won 19 seats out of 20. This time our target is to score 20 out of 20. So we made some arrangements, and we maintained the social balance. We fielded very good candidates. It was, now the media is explaining it as a surgical strike. Now BJP is trying to score some seats from Kerala, and the CPM-led LDF is trying to make space for BJP in Kerala. Now, while the Congress is confident of its performance in the upcoming elections, CPI is arguing, why should Rahul contest from here? Why not from Hindi heartland? It is for Congress to think over whether Rahul Gandhi, the leader of his stature, should fight elections confronting the LDF, the left in Kerala, or Rahul Gandhi, the leader of his stature, should confront BJP directly in any other part of the country. Fighting BJP directly. Why he chose, or his party has chosen to field him, it is for Congress party to do serious introspection. Even if he wanted to contest from south, he could have been fielded in Karnataka, where Congress party is heading the government. Not only that, BJP is the immediate rivalry there. The BJP is saying Rahul dar gaya, which is why he's running away to Wayanad. राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदले, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। जिस उत्तर प्रदेश की भूमि ने उनके राजनीतिक अस्तित्व को सींचने का, पोषित करने का काम किया है, उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। क्योंकि पहले रायबरेली छोड़कर सोनिया जी राज्यसभा के माध्यम से राजस्थान से चली गई, और उसके बाद आज अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में उन्हें कोई विश्वास नहीं बचा। Let's open this up. Shehzad Poonawala, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Sameer Chowgaonkar, senior journalist, Lokesh Jindal, political analyst, Kapish Srivastava, spokesperson of the Samajwadi Party, Dr. Jairaj, political analyst, completes the panel. Good evening, gentlemen. Now, before I come to you, let me bring in my colleague who's in Kashi, Ashutosh. आशुतोष जी, प्रधानमंत्री इस समय काशी में हैं। कुछ समय पहले उन्होंने मंदिर के दर्शन किए।
बीजेपी ये कह रही है कि मोदी जी वहां कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से डर के भाग गए, वायनाड चले गए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से वो लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं, जो अमेठी जिनकी परंपरागत सीट रही है, वो वहां से अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की जड़ें हैं वो हिल चुकी हैं। क्योंकि पिछले दफे हमने देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर, सीधी टक्कर देते हुए राहुल गांधी को पटकनी दी थी। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी समेत जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो तो उत्तर प्रदेश में आके न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसी से समझिए आप कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो तीसरे टर्म में, यानी दम पूरे तरीके से दम खोल के वो कह रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि वो इस बार भी काशी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काशी के लिए जो उन्होंने विकास कार्य किया है, जो उसका मॉडल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब पूरे देश के लिए एक नजीर बन चुका है। चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर जो तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट उन्होंने वाराणसी की धरती पर उतारे हैं, उससे ये साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि जो वाराणसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस संकल्प के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, मिशन 80 के साथ, वो उसकी ओर उन्होंने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो यहाँ पर पहुंचे थे महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ दरबार में। वो यहाँ पे लगभग आधे घंटे रहे। उन्होंने विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अपने चुनावी प्रचार का जो आगाज है वो कर दिया है। कल वो आजमगढ़ जाएंगे और वहाँ पर करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं उसकी सौगात पूर्वांचल के लोगों को देंगे और इसके साथ ही चुनावी जनसभा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है वो देखने योग्य था, क्योंकि एयरपोर्ट आशुतोष जी आप ऐसा कीजिए, बहुत जल्दी आपके पीछे जो लोग दिख रहे हैं उनसे बात कीजिए, पूछिए कि राहुल गांधी जी जो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में क्या सोचते हैं वो। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण है कि पहले भी नहीं जीते हैं, हाँ। तो अब की भी नहीं जीतेंगे, तो कैसे लड़ेंगे? अच्छा, हाँ। हिम्मत छूट गई है। हाँ, हिम्मत टूट गई है, पूरी कांग्रेस की टूट गई है। लेकिन मोदी जी तो दम ठोक के यहाँ से ताल ठोक के तीसरी बार लड़ने आ रहे हैं और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हाँ। उसको कोई नहीं हरा सकते। तो क्या बाबा का आशीर्वाद मिलेगा उनको? नहीं, उनको आशीर्वाद मिल चुका है, विश्व विजेता बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है, तभी ना वो कह रहे हैं कि हम तीसरे टर्म में आ रहे हैं। जिसके ऊपर विश्वास बाबा का रहता है उसको वो विश्वास के साथ बोलता है। लेकिन राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने न्याय यात्रा किया था, बाबा का आशीर्वाद लिया था, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसा क्या है? अमेठी जबकि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अमेठी देखिए, ऐसा है कि अमेठी को अगर वो राहुल गांधी परिवार समझते वहाँ के, तो वहाँ से वो लड़ते, लेकिन वो अपने कारण वो नहीं हार पा रहे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया। तो काम नहीं किया तो कैसे जाएंगे? मोदी जी ने यहाँ काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, इसलिए वो आ रहे हैं इस बार तीसरी बार भी। बिल्कुल काम किया है और मोदी जी ही बनारस से जीतेंगे और जब जब खड़े होंगे तब जीतेंगे। राहुल गांधी ने अपना आपा खो दिया है, उनको एक क्लास लेना चाहिए मोदी जी से, अलग से जाके मोदी से मीटिंग करनी चाहिए, उनको क्लास लेना चाहिए। उनके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बच्चों जैसे। ये बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी को मोदी जी से क्लास लेनी चाहिए कि आखिर कैसे जीत हासिल करते। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, चलिए देखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है इसमें आगे क्या क्या होगा। आशुतोष जी हम आपके पास आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। लोकेश जिंदल, ये जो लोग वहां बोल रहे थे, ये इनको इम्प्रॉम्प्टू पूछा गया, आपने सुना उनका रिस्पॉन्स क्या था? टीम इंडिया तो कहती है मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी का तो परिवार था अमेठी, क्यों छोड़ दिया उन्होंने परिवार? गणेश जी, बात राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, बात है सरकार की। जो वादे 2014-2019 में भाजपा सरकार ने किए थे और जो दावे आज वो ठोक रहे हैं, क्या उन वादों और दावों में किसी भी प्रकार की आपको समानताएं दिखती है? नहीं, केवल और केवल एक तरह से झांसा दिया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है ताकि लोग प्रश्न ना पूछें। अरे लोकेश भाई, मैंने सवाल क्या पूछा, आप क्या जवाब दे रहे हैं? वादों दावों में फंस गए आप। वाइस राहुल गांधी
not contesting Well- from Amethi or any of the seats in Uttar Pradesh. This was Congress's bastion. देखिए जी, राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े या प्रधानमंत्री जी वायनाड से लड़ने का फैसला कर ले। अब अगर नरेंद्र मोदी जी केरला से नहीं लड़ते तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि वे जो है भाग गए केरला को छोड़ के, या फिर भाजपा में दम नहीं है, या फिर डर गए। ये तो बातें नहीं हुई ना। अच्छा, कांग्रेस, भाजपा ये राष्ट्रीय स्तर की Okay, let me पॉलिटिकल bring in the पार्टियां हैं। BJP spokesperson Shehzad Poonawala. Why are you saying Rahul Gandhi डर गए? अभी हम शुरुआत करते हैं लोकेश जी की बात से। यदि हमने वादे पूरे नहीं किए और सारे दावे झूठे हैं तो आपको तो उत्तर प्रदेश में जाके वाराणसी से हराना चाहिए पीएम को। भाई बेस्ट थिंग ना, वादे पूरे नहीं किए, प्रधानमंत्री के ऊपर तो इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, तो वाराणसी जाकर लड़िए ना। आप तो वाराणसी छोड़िए, बीच में नहीं। लोकेश जी, आई रिक्वेस्ट, अपनी बारी में प्लीज। प्रणेश जी प्लीज, डिस्टर्बेंस प्लीज, आई विल कम टू यू फॉर अ रिस्पॉन्स। और देखिए ना कितना परिवर्तन आया है, डरो मत से डर कर भाग गए। अब बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। आज अमेठी छोड़कर जो राहुल जी भागे हैं, 80 में से 80 बीजेपी को मिल रही उत्तर प्रदेश में, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष कि ये जो भी वादे दावे, ये जो भी झूठ बोलते थे, मुद्दे बहुत बड़े हैं, ये सब कुछ हवाई है, इनके पास कोई भी सब्सटेंशियल इशू नहीं है लड़ने के लिए। तीसरा, जो एलन गोवन और मारन जैसे नेताओं ने उत्तर प्रदेशियों को गालियां दी है, जो खुद स्वयं वाराणसी के युवाओं के बारे में नशेड़ी कहने का काम राहुल जी ने किया है, और जो डीएमके के नेता ए राजा ने जो हिंदू सनातन को गाली, और जो बंटवारे की बात कि साउथ इंडिया सेपरेट हो जाना चाहिए, और जो लगातार नॉर्थ इंडिया के खिलाफ, चाहे प्रियंका वाड्रा हो चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने अमेठी के वोटर्स को इंसल्ट किया, उन्होंने भैया बोला था। ये सारी चीजों से डर कर आज उनको पता है कि उनकी राजनीति उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, इसलिए रायबरेली भी छोड़कर भागना पड़ा, और वाराणसी में भी जाने की हिम्मत नहीं, और अमेठी भी छोड़कर भागना पड़ा। आज इसका मतलब साफ है, 80 on 80 बीजेपी इज विनिंग। कपिल श्रीवास्तव जी, सपा का साथ है, फिर भी कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? आप शायद म्यूट पे हैं कपिल जी। समर्थन भी म्यूट ही है इनका। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं, हम आपकी तरह समर्थन नहीं करते कि गाली देने वालों के साथ समर्थन हो जाए। राजभर साहब आपके मंत्री हैं, आपको मुबारक। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री को इसकी औकात याद दिला देंगे, भीख का कटोरा थमा देंगे, हंसिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मेन पॉइंट कि देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 80 में 80 इनको हराएगा, और कैसे हराएगा वो आपके सामने है कि इतने डर गए हैं कि जो पानी पी पी के इनको आशीर्वाद देते थे, जो भगवान श्री राम को सिंगी ऋषि का औलाद मानते थे, उनके साथ ये गठबंधन कर बैठे हैं। जो भगवान श्री राम को मां की गाली देते, उनके साथ पूनावाला साहब का गठबंधन है। संजय निषाद कैबिनेट मिनिस्टर, और उनको भी सीट। खैर नहीं कपिल जी, अगर वो कहें कि भगवान राम ने उनको सद्बुद्धि दे दी है और वो चले गए हैं अपनी गलती मान के, तो क्या कहेंगे आप? वो गलती नहीं मानते, पहले पाप करेंगे फिर कहेंगे गलती। आप जो बताइए, मैं गाली दे दूं किसी को, उसके बाद कहूं मैं गलती मानता हूं, ये तो कोई बात नहीं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि उत्तर प्रदेश अभी बहुत बाकी है। और वाह, प्रधानमंत्री जी तो भाई ब्रांड है, और प्रधानमंत्री जी बांड के साथ साथ क्या है, गारंटी है। गारंटी है तो वायनाड से लड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत पड़ी हुई है? खुला चैलेंज कर रहा हूं कि लड़ लीजिए वायनाड से। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट वाली ना है, 370 वाली, 400 वाली। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी की हिम्मत हो तो वायनाड से लड़ ले। क्यों चैलेंज लेना चाहते हो उत्तर प्रदेश में? काशी ठीक है, आप तो बहुत विजेता हो, WWF के पहलवान हो, ईवीएम भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है। नहीं, ईवीएम से क्या मतलब है आपका? ईवीएम में भरोसा नहीं है कपिल जी? 20 लाख ईवीएम जिस देश से मिसिंग हो और जिसका रिजल्ट कार्ड आज तक शून्य हो, कि ये पता न कर पाए, पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं हाई कोर्ट में ऑर्डर ये जो है अपनी जवाबदेही रिटर्न स्टेटमेंट शामिल कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज आपको पूछ रहा हूं, आखिर इलेक्शनल कमिश्नर की नियुक्ति में क्यों मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहेंगे? क्यों अध्यादेश आप लेके आएंगे फिर उसको कानून बनाएंगे? नहीं तो इसको आप 2024 के चुनाव से जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं जोड़ेंगे? जब पारदर्शिता नहीं होगी तो जोड़ेंगे नहीं। जबकि बात आप कर रहे हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं रहूंगा उनकी नियुक्ति में, आप कहते हैं नहीं साहब, आप कौन होते? कैबिनेट रेस्पॉन्ड टू दैट। कपिल जी, एक सवाल, मैनपुरी में ईवीएम ठीक था जब डिम्पल यादव जी 2.5 लाख वोट से अधिक से जीती?
पहली बात आपको हम बता दें, अच्छा। चोर जानता है कि उसको चोरी कहाँ करनी है। जहां 25-50 हजार की चोरी होती है वहां कर लेता है चोर। अच्छा, लेकिन अच्छा, 4.5 लाख की चोरी करनी होगी कहां से करेगा? अच्छा अच्छा, ओके ओके, अब समझ गया बहुत समझ ही गया। साफ- तो मुझे एक बात नहीं है, सर, सुन लीजिए ना सर, मेरा मौका था सर, मेरा मौका था सर मेरा मौका था। कपीश जी मेरा मौका था। आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं कपीश जी, अब सुन लीजिए। कपीश जी मेरा ही मौका था भाई, अब आप बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? नहीं, एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए। नहीं। कपीश जी बीच में कपीश मत जी, बोलिए। अब जवाब तो सुनिए। देखिए, अब आपने जो ईवीएम पे प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। कपीश जी बोल रहे हैं कि थोड़े बहुत वोटों की चोरी हो सकती है, पर इतने बड़े मार्जिन की चोरी नहीं हो सकती है। तो मान्यवर, हिमाचल में तो हम 0.9 से हार गए, 0.9% ऑफ वोट से हार गए। वो कैसे हो गया? एनीवे छोड़ दीजिए, मतलब वहां पे कम से कम ईवीएम के चुनाव को बैलेट से करवाने के आप पक्ष में, छोड़ दे। अब कपीश जी मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। कपीश जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। आपकी और लोकेश जी की बड़ी बुरी आदत है कि आप लोग सवाल दागते हैं और 5-5 सेकंड में इंटरप्ट करते हैं। 5-5 सेकंड में इनका 500 इंटरप्शन आ जाता है। भाई ये क्या, एक AK-47 और एक शाब्दिक पत्थर लेकर खड़ा है भाई। अरे भाई आप पहले सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अब देखिए, इन्होंने सारे बयान गिनवाए, निषाद का बयान गिनवाया, इनका बयान गिनवाया। ये सारे बयान तो जब आपके साथ थे तब थे, तो आपने उस समय क्यों नहीं निकाला? और राम भक्त पे गोली चलाने वाले आज प्रभु श्री राम की माताजी की चिंता कर रहे। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। आज मैं आपसे पूछता हूं, पर यह पैमाना अपनाकर अब उदयनिधि स्टैलिन पर एक स्टैंड लीजिए और ए राजा पर स्टैंड लीजिए। आप तो खिलाफ है ना प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलने वाले लोगों के, तो बोलिए कब गठबंधन तोड़िएगा उदयनिधि के साथ? Now, no, 1 minute. Before I get Sameer ji into the mix, Dr. Jairaj, why do you think Rahul Gandhi should not contest elections from Wayanad? Or why do you think he's contesting elections from Wayanad? See, it's when you look at the history, even Indira Gandhi, the great leader India saw, the woman leader India saw, was also contested from Chikmagalur, from Karnataka. So, Congress is a very big party. It has roots in almost all the states. So, he can choose where to contest or not to contest. It is his freedom. He can choose. He can contest from Kerala, because Kerala, certain political things that the UDF and LDF is there. Certain rivalries are going on. So to boost the morale of his party members, he has to contest from Wayanad. And when he likes, he can contest from why Narendra Modi is not contesting from South India, any of the states. The question is simple. Dr. Jairaj, I'll make it even simpler for you. If that is the case, then why has the CPI put up its candidate? Do you not have faith in Rahul Gandhi that he can win Wayanad for you? No, it's not a matter of it's a matter of politics in Kerala, because there are two fronts fighting against each other. It is UDF and LDF. But all of you are part of the larger India alliance. Your fight is against Prime Minister Modi. In national politics, they are on the same platform. You can understand that. Yeah, so we are talking about general elections, Dr. Jairaj. What do you think we are talking about? We are talking about the Lok Sabha elections. Yes. In Lok Sabha election also. Why has the CPI put up a candidate? And you're talking about boosting morale. Who will boost morale of Congress cadre in Uttar Pradesh? Akhilesh Yadav. They have got a very good alliance with SP. This time things are going to change. I'm not to predict. So are you saying, no, by this logic, are you saying the alliance that the Congress and left have is not good? That it won't last? In Kerala, scenes are different. But in other parts of India, we are together. Why don't you understand that thing? Just one line. There The are reason differences in all why parties Mr. in Jairaj, one line, just one line. Okay. Just one line. See, what Mr. Jairaj is not telling you is that when the Congress called Mr. Pinarayi Vijayan psychopath and coward, just recently they have said, and they said his daughter is corrupt, this is badla being taken on Rahul, कि राहुल को एक भी सेफ सीट ना मिल पाए. They know very well उत्तर प्रदेश में आने वाले राहुल गांधी जाएंगे नहीं. राहुल गांधी, Jairaj ji and Pinarayi Vijayan are taking badla from Rahul, saying Wayanad भी खाली करो. Jairaj ji के innocent चेहरे पर मत जाओ. He is being innocent, but they are all taking badla. Is this a trap for Rahul Gandhi? See, first of all, answer Shehzad Poonawala. Why are you so scared to make all the electoral bonds public? First, tell us this. I'll answer.
Tell us this. No, but जवाब one minute, जवाब दे no, दो, one minute. जवाब How दे is दूं? this about electoral bonds? सर जवाब दे देता हूँ, ये रात भर रोते रहेंगे, Electoral bonds. It is रात about भर रोते रहेंगे, मैं जवाब It दे is देता about हूँ। electoral Tell me bonds. one Why thing, did the tell me Congress? one No, thing. are you say why did the Tell me Congress party? one One thing. minute. Why are No, you no. scared of This asking hypocrisy questions to must be BJP? called out. No, Lokesh why Jindal, if the hypocrisy? Congress Why party had hypocrisy? problems with electoral bonds, why did you accept money? If the TMC had problem with electoral bonds, why were you taking money? Why was the Congress party accepting money through electoral bonds? You should have taken a principled stand. No, electoral bonds. No. Lokesh, answer this question. If you had such a problem with electoral bonds, I'll get Shehzad to respond to the question you asked. This is my question. Lokesh bhai, this is my question. No, I'll get the BJP to respond to your question. He is willing to respond. Just answer this question. If the Congress party had such a problem, आपने पैसा क्यों लिया electoral bonds का? Forget about Rahul Gandhi. Tell me one thing. Why are you so scared of asking a question to BJP? I am not. I am not. ये रात भर रोते रहेंगे, मातम मनाते रहेंगे. Now Lokesh, give me 20 seconds without interruption. I'm answering this question, only this question, then we'll move on to the debate. He said that why I am not disclosing means my party is not disclosing electoral bonds. By the way, it's the SBI's decision. But if you are aggrieved by this, Congress has taken 1,000 crores plus. You declare it tomorrow. Give the list to Times Now. They'll publish it. कांग्रेस अपना जारी कर दे ना. कांग्रेस अपना जारी कर दे. कांग्रेस अपना जारी कर दे. नहीं, when is Congress declaring its own? कांग्रेस अपना कब जारी कर रहा है? कांग्रेस के पास उनकी तो लिस्ट है ना. अपना जारी कर दो 1,000 crores का. Tell Congress to declare. Only the SBI has the list. The party. कांग्रेस के अरे भाई क्या बोलते हैं? समीर जी, सोच समझ कर बोलना चाहिए. Okay, now silence. समीर चौगांवकर जी. समीर जी, जब सीपीआई ने वायनाड से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, आपको याद होगा, लेफ्ट के बड़े नेता. Just one second. This argument is completely fake. The Congress knows its own electoral donors to the bonds. They can release the list right now. Do it right now. We'll come to that. Sameer ji, 1 minute. Lokesh bhai, please. There is a super 1 minute. I'll have to put your fader down, please. Sameer Chowgankar hasn't spoken. Let me bring him in, please. Sameer ji, CPI had openly said Rahul should not contest from Wayanad. He should contest from a North Indian state. Why do you think Congress party is running away from what used to be its bastion? Uttar Pradesh, more than 80 Lok Sabha seats? देखिए, पहली बार नहीं है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को और नॉर्थ इंडिया को छोड़कर साउथ की तरफ गया है इलेक्शन लड़ने. अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु से चुनाव जीती थी. इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु कब गई थी? जब इंदिरा गांधी अमेठी से संजय गांधी और रायबरेली से इंदिरा गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गए थे. उसके बाद इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु सीट जीतने के लिए वहां पर गई थी. हारने के बाद गई थी. राहुल गांधी भी जब पता था कि अमेठी से वो हार रहे 2019 का चुनाव, तो वायनाड चले गए थे. सोनिया गांधी कब बेल्लारी चुनाव लड़ने गई थी? जब सोनिया गांधी को लग रहा था कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं अमेठी जीत पाएंगे, तो वो बेल्लारी चुनाव लड़ने चले गई थी 1999 के अंदर. तो गांधी परिवार और कांग्रेस को जब भी लगा है कि उत्तर भारत से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है, वो दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं. मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2019 में चुनाव हारने के बाद अब ये समझ गए कि उत्तर भारत के अंदर न गांधी परिवार न कांग्रेस के लिए कोई जमीन बची है, और इसी कारण वो अब दक्षिण के अंदर अपनी सीट मजबूत कर रहा है वायनाड जाकर. और आप देखिए, अभी कांग्रेस ने 39 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है. क्या रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़े तो उसके नाम की घोषणा क्यों नहीं की? राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ना चाहते हैं या अगर कार्यकर्ता कह रहे हैं तो अमेठी से चुनाव की घोषणा कर देते. मल्लिकार्जुन खड़गे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा से है, वह कर्नाटक से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे. आप देखिए, दो राज्य जहां इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तेलंगाना और कर्नाटका, जहां इन्हें किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है, और इन दो राज्यों से 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स आती है. कांग्रेस से सिर्फ 11 कैंडिडेट डिक्लेयर करे. आप तेलंगाना 17 के 17 डिक्लेयर कर देते थे. कर्नाटका में आपकी गवर्नमेंट है, आप वहां से कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते. हिमाचल में तो आपकी सरकार है, आप हिमाचल की 4 सीट डिक्लेयर कर देते. जहां इनके सरकार है, जहां ये पावर में है, वहां भी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पा रहे. लोकेश जी जवाब देना दूर की बात है. ये बताता है कि कांग्रेस को लग रहा है कि दक्षिण भारत ही से भी बचा सकता है, उत्तर भारत से इनके पास कोई सीट नहीं बची है. जी, भाजपा ने नागपुर से श्री नितिन गडकरी जी का नाम नहीं घोषित किया. इसका क्या मतलब है? अभी आपका ये लॉजिक मैं लगा दूं तो इससे क्या भाजपा नागपुर की सीट दे रही है क्या?
क्या? महाराष्ट्र से एक भी सीट डिक्लेयर हुई है क्या? अरे तो फिर महाराष्ट्र से एक जब भी सीट ये डिक्लेयर हुई है आप अभी? कहां से जनरलाइजेशन लेकर आते हैं सर? आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन ये क्या जनरलाइजेशन है? पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा फर्क रहा है। कांग्रेस जनरली सीट्स लेट अनाउंस करती है और स्क्रीनिंग कमेटी और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इन सब के व्यूज में मद्देनजर रखते हुए कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करती है और हर पार्टी की अपनी एक कार्यशैली। Let me just add one point. I'll tell you why this argument does not hold. The three parties in NDA in Maharashtra, BJP, Shiv Sena and NCP, they are yet to finalize the seat sharing. In Uttar Pradesh, Congress and SP, कांग्रेस आप बता दीजिए, आपका अलायंस नहीं हुआ है एसपी के साथ? सीट्स हैव बीन टेकन बाय बीजेपी एंड बीजेपी हैज गिवन 16 सीट्स टू द अदर्स। ये किसने आपको फोन किया? No, 32 सीट्स बीजेपी। वी आर टॉकिंग अबाउट द शिंदे सेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं रही। हु कॉल्ड यू टू से? 32 seats have been claimed by BJP and 16 seats are. Where is this coming from? But again, if the BJP does not know, how does the Congress know all this? So why hasn't the BJP declared it yet? Why hasn't the BJP declared it yet? If you have declared your seats with the SP in Uttar Pradesh, why are you not declaring your candidates? The BJP in Haryana, like JJP, is unable to arrive at a seat sharing agreement like Shiromani Akali Dal. So it has failed completely in Maharashtra. Either accept this or accept that whatever the delay is being caused, there is some form of internal tension. Shehzad Poonawalla, answer that. Lokesh is saying, before you say Rahul dar gaye, what are you doing in your own party? Why have you not declared Gadkari's name from Nagpur? First of all, you should know that in the BJP, there is an institutionalized, structured method in which the tickets are declared. There is a local level, district level, state level, coordination meetings, and then it comes to the national level. In Maharashtra, the first level of meeting has also not taken place. Because till now, the alliance says, one second, sir, please don't interrupt. Lokesh, now it's getting to the point of irritating. You speak in your turn, I don't interrupt you. Let me speak, I will not interrupt you. That's at least the basic courtesy we can maintain. Gentlemen, please, let's not talk over each other. But at least there should be basic courtesy. I mean, every 5 seconds, he or somebody is interrupting. Lokesh bhai, please, let him make his point. He didn't interrupt you when you were speaking. Please. That take it in writing, that the moment the alliance is deciding the ticket sharing, the seat sharing, Mr. Gadkari's name will be declared. But now you tell me that when your alliance is already formalized with Samajwadi Party, why haven't you declared Amethi seat? You tell me. And you just said 80 में से 80 बीजेपी हार रही है, तो आपको तो तुरंत दे देना चाहिए था कि परिवार का कोई भी सदस्य लड़के हरा देगा, वाराणसी में भी हरा देगा। बोलिए अब, बोलिए क्यों नहीं दे रहे? In India alliance, there is an institutional mechanism through which seat arrangement is done. From the district level, provincial level, national level, all candidates they are. केरला में किसको पूछ के आपने किया 14 सीटें? केरला में कौन सा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था इंडिया अलायंस का? आपने 195 सीट किस आधार पर डिक्लेयर किया? What form of a rubbish argument? Let me now bust this again. One line. Just one line. You said institutional mechanism है इंडिया अलायंस का? केरल में पूछा लेफ्ट से, केरल में लेफ्ट से पूछा क्या? पूछ लो जयराज से, जयराज से पूछ लीजिए। 195 जो सीटें आपने डिक्लेयर की, तो उस तरह से बाकी सीटें क्यों नहीं डिक्लेयर की? अरे क्योंकि बाकी सीटों का डिस्कशन अभी नहीं हुआ है लोकेश भाई। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया अलायंस, बाकी सीटों का डिस्कशन नहीं हुआ है। मुझे एक बात बताइए, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। यू आर डेलिबरेटली क्रिएटिंग इश्यूज। भाई जिस तरह से उनकी बाकी सीटों का डिस्कशन नहीं हुआ है, उसी तरह से इंडिया अलायंस की बाकी। बट उत्तर प्रदेश में तो आपका अलायंस फाइनलाइज हो गया है, आपको पता है कौन से सीट्स आपके हैं। इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार है, तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्यों नहीं सीट डिक्लेयर किया? बताइए। ये तो गठबंधन है महाराष्ट्र की सरकार में, तो क्यों सीट पता नहीं पा रहे? आप इंडिया अलायंस के पीछे पड़े हैं, बताइए। Now, please don't interrupt. Please don't interrupt. बताइए आप। हाँ, please don't interrupt, but don't interrupt so that the audiences can hear. कीजिए। आप don't give me orders. You do your work. Okay. I'm not giving you orders. You're unworthy of being given any orders. You're from the Congress. Now let me finish my point without him interrupting. Respond to that. Now, Lokesh, open the windows of your ears and understand that there are 3 parties there. They are discussing how the seats will be shared. 80% of those talks have been done. And after that, the BJP has its own institutional mechanism as to who should be declared on which seat. One second. But having said that, you said that India Alliance has an institutional mechanism. Can you please tell me, you asked the left parties before declaring the Kerala seats, including Wayanad?
because they told you clearly Wayanad पे राहुल गांधी नहीं चाहिए, and they declared a seat, they declared Annie Raja on Wayanad. Now tell me what is your mechanism, and if you are so confident that Indian mechanism is so great, you have an alliance with समाजवादी, clear है वहां पे कि this many for समाजवादी, this many for us. वहां पर क्यों नहीं किया आपने? What is your mechanism that for declaring 195 seats, you have a different set of criteria, and for declaring seats in a state where you are having government with coalition, you have a different criteria? I mean, how do you have a conversation with somebody who's dense? I don't know. We people, we humans do not have windows on the ears, so you can get all the facts very clearly. Dr. Jairaj, you first look at yourself. Why are you not able to declare all the candidates? 1 minute. Lokesh, 1 minute. Dr. Jairaj, did you inform the Congress party that, look, we are fielding a CPI candidate from Wayanad? Was it done? No. No, we don't have to, because we are two opposing parties, two opposing front fighting in between. In Kerala, the things are different in Kerala. That is the point I want to make it clear to the gentleman from UP. So what I am saying is that the things are different in Kerala from here onward, when Kerala has started its political campaign, I mean elections way back in 1956, there are different fronts. In each different front, one is UDF and one is LDF. In UDF is United Democratic Front and LDF is Left Democratic Front. And UDF is led by the Congress and LDF is led by the Communists. And there are difference of opinion in them. But in national level, when it comes to national level, and when we look at a common enemy, BJP is the common enemy for the LDF as well as UDF in national level. But in the state level, BJP does not have even a just hold your thoughts. We are getting